नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम सौरभ सिंह है और एक बार फिर से हम आ गए हैं आपका चाइनीज़ कोर्स लेके, सो दैट वील बी एबल टू टीच यू द बेसिक निटिग्रिटीज ऑफ द चाइनीज़ लैंग्वेज। तो आपको चाइनीज़ लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए हमने ये वीडियो सीरीज़ शुरू की है और इसके पहले चरण में हमने 3 वीडियोस रखे हैं फॉर स्पोकन चाइनीज़ एंड सब्सिक्वेंटली हम स्टार्ट करेंगे रिटन चाइनीज़ यानी चाइनीज़ कैरेक्टर राइटिंग को। ठीक है, सो चाइनीज़ कैरेक्टर राइटिंग शुरू करने से पहले ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइनीज़ लैंग्वेज थ्रू पिनिन सिस्टम जो है वो एक्सप्लेन करना चाहेंगे हम। और इन 3 वीडियोस में हम जो है बेसिक प्रोनाउंसिएशन ऑफ चाइनीज़ लैंग्वेज कवर कर रहे हैं। सो वी आर एक्सपेक्टिंग और आपसे रिक्वेस्ट यही है कि ये तीनों वीडियोस जो है बहुत ही एहतियात के साथ फॉलो करें एंड आई वुड लाइक यू टू रिपीट इट एटलीस्ट 10 टाइम्स फॉर द नेक्स्ट वीक। अगर ये एक हफ्ते आपने रिपीट कर लिया, ठीक है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है ऑफ प्रोनाउंसिएशन आपको आ जाएगा, फिर आपको लैंग्वेज सीखने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, सो सब्सिक्वेंट वीडियोस जो है बहुत ध्यान से देखें और रिपीट करें। अगर समझ ना भी आए, हो सकता है कुछ इनिशियल स्टेजेस में जो है चीज़ें समझ ना आ रही हों। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जो सीख रहे होते हैं, एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप बच्चों को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे ये वाली चीज़ आप क्लियरली देख सकते हैं। तो जो बच्चा है वो क्वेश्चन नहीं करता, वो पहले सीखने की कोशिश करता है। ठीक है, उसका मतलब उसे बात समझ आता है। ठीक है, तो पहले 3 वीडियोस जो है आप फोकस करें ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोनाउंसिएशन विदाउट ट्राइंग टू क्वेश्चन इट। ठीक है, आगे वो चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ भी आएंगी एंड सब्सिक्वेंटली यू विल बी एबल टू हैंडल इट। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, जस्ट कंटिन्यू विद द कोर्स। Okay, so welcome again. Now we'll start with the introduction to Pinyin. So, a brief about the history of the Pinyin system in China. They wanted to romanize the language to make it accessible to the foreigners, and hence a number of people came forward. There are a number of names. I do not want to take those names. Now, almost in 1958, by the end of 1950s, they started to develop this system, and as of now, it is the most popular method of learning Chinese. Okay, Pinyin in particular is represented by two different characters. Pin represent spell or spelling per se, and in is for sound. Okay, so a particular Pinyin character, a particular Pinyin consists of 3 parts: the initials, the finals, and the tones. Okay, so we'll start with the initials first. Initials are basically the consonant sounds. Okay, so the 3 parts which a pinyin consist of initials, which are consonant sounds, finals, which are vowel sounds, and accompanied by tones of the particular sound. Okay, so we'll go about the initials. By the time when you listen to these, okay, you have to understand that these particular sounds are a part of the original sound. Okay, and I'll try to give you an equivalent sound in Hindi and an equivalent sound of English. मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको एक इक्विवेलेंट साउंड मिले हिंदी और इंग्लिश में, सो दैट आप रिलेट कर पाओ इन दोनों से। ठीक है, अभी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड इन द सब्सिक्वेंट videos, I will request that you do not focus on emphasizing or understanding, rather than focus on repeating what is being taught. Okay, so in this particular video and the subsequent 3 videos, I'll request you to repeat it without even focusing or emphasizing on understanding the things. Okay, कोई साउंड ऐसा है तो वैसा ही है,
let us not get entangled in the particular understanding on why ऐसा है, क्यों हो रहा है. Maybe it's a different story. Maybe we can cover in subsequent videos. But as of now, let us focus on the pronunciation. Okay. So if you see a consonant letter B in the subsequent pinyin which you encounter during your learning, then it will be read or sound जो इसका है वो प की तरह होगा. Okay, so B will be read as P. In English, I've tried to write it in English and Hindi so that people of both languages, people who understand either of the languages or both of the languages can understand. Okay, so दोनों के लिए मैंने कोशिश की है कि वो कर पाएंगे. Okay, D is read as the, G as क, P is a bit specific. हिंदी में दो हैं, एक फ होता है जो नुक्ते के साथ होता है और फ होता है. ठीक है, जो P है वो फ की तरह रीड होगा. मीन्स यू हैव टू एक्सेल वाइल यू प्रोनाउंस इट, जैसे फल होते हैं. ओके, फ. वी T, then again T would be read as th, K as kh, M as m, N as n, H as h, F as f. ये नुक्ते वाला फ है, फ. ठीक है. L as ल, R as र, J as च, Q as छ, X as श. इसके बाद ये जो 6 साउंड्स हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, ये थोड़े स्पेसिफिक हैं. ZH, CH और SH. व्हेन यू स्पीक दिस, ये टंग जो है आपकी जो जीव है वो इसमें काम करती है. यू हैव टू लिफ्ट अ टंग. आपका जो टंग है उसको थोड़ा सा लिफ्ट करना है, वो हवा में रहेगी व्हेन यू स्पीक दिस. ठीक है, अगर नहीं बोल पाए इनिशियली, देन यू हैव टू ट्राई इट. आप जो है इनिशियल फेजेस में ज़्यादा फोकस जो है टंग को ऊपर रखने की करें. अगर नहीं रख पा रहे तो भी कोई बात नहीं है, यू कैन सिंपली रीड इट च्र. ठीक है, अगर अच्छा कर पाए तो ट्र कर सकते हैं. when you lift your tongue, a sound, a different sound में कम. ठीक है, और ZH will be read as tr, CH will be read as tr, and SH will be read as tr. ये थोड़ा सा स्पेसिफिक है, बहुत कोशिश करनी पड़ेगी आपको टू रीच द ओरिजिनल साउंड. इफ नॉट, यू ट्राई टू रीड द वन इन हिंदी और इन इंग्लिश. इट मे ब्रिंग यू समवट क्लोजर टू व्हाट इज बीइंग प्रोनाउंस्ड. सो आप हिंदी और इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने की कोशिश करें. ये आपको जो असली प्रोनाउंसिएशन उसके करीब ले आएगा, सो दैट आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. एंड जैसा मैंने पहले भी कहा है, मेरा जो एम है टू टीच वाइल दिस वीडियो इज़ बीइंग मेड, वो आपको लैंग्वेज के प्रोफेशनल्स बनाने के लिए नहीं है, आपके फंक्शनल नीड्स पूरे करने के लिए. तो मेरे ख्याल से ये हिंदी में पढ़ना जो है आपके लिए फंक्शनल नीड्स के लिए काफ़ी होगा. ओके, अगेन Z इज़ रेड एज च. ये हिंदी में जैसे वर्ड्स होते हैं मत्स्य, वत्स, तो ये आधा त और स साथ में मिला के च. वैसे ही सी जो है वो आधा त और छ के साथ छ पढ़ा जाएगा. एस जो है वो सीधा दंत स है. सो दिस इज ऑल अबाउट द इनिशियल्स. नाउ विल रीड द फाइनल्स. फाइनल्स बहुत ज़्यादा सिंपल हैं. द वे दे आर रिटन मोस्टली उसी हिसाब से पढ़े जाते हैं. कुछ स्पेसिफिक्स हैं विच आई एक्सप्लेन थोड़ी देर में. व्हेन वी एनकाउंटर दोस, मैं उसको एक्सप्लेन भी करूँगा. मोस्टली जो है पिनिन जो है वो उसके फाइनल्स जो हैं जैसे लिखे जाते हैं इंग्लिश में वैसे ही पढ़े भी जाते हैं. ठीक है, तो आई विल बी रेड एज ई, ऊ, यू विल बी रेड एज ऊ, A will be read as A, O will be read as O, E will be read as A, and E के ऊपर जो कैप लगा हुआ है that will be read as A.
मीन्स आधा अ के नीचे हलंत लगा लें, शायद वैसा पढ़ पाएंगे आप। द हाफ साउंड, यू के ऊपर जो दो डॉट हैं वो यी पढ़ी जाती है, ठीक है, यी यी। ये साउंड थोड़ा स्पेसिफिक है, बट मेरे ख्याल से हिंदी स्पीकर्स और मे बी इंग्लिश स्पीकर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यू जस्ट हैव टू रोल योर लिप्स बिफोर यू स्पीक इट, ओके। सो राउंड लिप्स के साथ यू विल हैव टू से दिस समथिंग सेम पोस्चर जैसे आप सीटी बजाते हैं। व्हेन यू विसल यू एक्चुअली प्लेस योर टंग्स लाइक दिस, प्लेस योर लिप्स लाइक दिस। सो ये साउंड होगा। रिपीट करते जाएं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप नहीं रिपीट कर पा रहे हैं। इवेंचुअली व्हेन यू एनकाउंटर दीज आपको जो है ये धीरे धीरे समझ आने लग जाएगा, ठीक है। रिपीटिशन ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आई स्पेसिफिकली से विद इन द नेक्स्ट 7 to 8 days आप जो है ये रोज़ 10 बार रिपीट ज़रूर करें। उसके बाद जो फाइनल्स हैं, आई ऑल्सो फॉरगॉट टू टेल यू दैट देर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइनल्स। एक सिंपल फाइनल्स है जो एक एक मोनोसिलेबल साउंड्स वॉवल साउंड के साथ आ रहे हैं। देर आर कंपाउंड फाइनल्स ऑल्सो, ओके। हालांकि इनके डिफरेंशिएशन से आपको लैंग्वेज सीखने में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट बिकॉज ये है पार्ट ऑफ द सिलेबस तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो कंपाउंड फाइनल्स में जो है दो अलग अलग साउंड्स जो हैं उसमें अटैच्ड हैं। ऑल्दो जो मेन साउंड है वो वॉवेल साउंड है, बट इसके साथ कुछ कंसोनेंट साउंड्स भी अटैच्ड हैं, ओके। सो विल रीड फाइनल्स एट वंस। आई, ए, आओ, ओ, आन, अन, आंग, अंग, ओके। सो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं ऊपर से हॉरिजॉन्टली जा रहा हूँ, ठीक है, एंड फिर आफ्टर फिनिशिंग ऑफ अ पर्टिकुलर लाइन आई एम गोइंग डाउनवर्ड्स। वेल रिपीट इट फॉर यू अगेन, ठीक है। ए आई इज आई, उसके बाद ई आई इज ए, आओ, ओ, आन, अन, आंग, अंग, ओंग, या, याओ, ये, yo, yen, yin, yang, ing, yong, ua, uo, wai, wei, wan, wan, wang, wang, yue, yuan, yuan, yun, okay. So these were the compound finals. There are some spelling rules or the rules for writing these, or the rules for writing these compound finals. If there is no initial consonant before I or E, then when you have to write is you just put a Y in the front, just to make them look nice while they are written. And while you add Y, दो डॉट्स यू के ऊपर हैं वो नहीं लिखे जाते हैं नॉर्मली. सो व्हेन Y इज रिटन विद यू, it is not U, it's E. If there is no initial consonant before U, it is written as U. ओके. सो अगर कोई कॉन्सोनेंट नहीं है तो W के साथ ही लिखा जाता है. सो बेसिकली अगर Y के साथ U लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि साउंड जो है वो U है, एंड W के साथ U लिखा हुआ है इसका मतलब वो साउंड U है. U जैसे P के साथ B के साथ जो है प साउंड आता है, वैसे ही W के साथ जो है वो U आएगा. U BU लिखा होगा तो इसका मतलब हो जाएगा पू. ओके. व्यंग जो है वो लिटा जाता है ओंग की तरह, ओंग. दो सिलेबल्स अगर साथ में लिखे होते हैं, ठीक है, एंड उसमें वॉवेल्स भी होते हैं, तो दो वॉवेल्स जो है वो साथ में नहीं लिखे जाते हैं बिकॉज वो कंपाउंड
वॉवल्स का भी कंसेप्ट, वो एक आइडिया है जहाँ पे कंपाउंड फाइनल्स और नॉर्मल फाइनल्स में अंतर करना होता है। ओके, सो कंपाउंड फाइनल्स अगर दो रिपीट हो रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर में, जैसे 12 को कहते हैं श्रार। ओके, आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जो श्रार, उसके में एक अपॉस्ट्रोफ लगा दिया जाता है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि श्र और जो आर है वो दोनों अलग अलग है। ओके, विल बी प्रोवाइडिंग यू विद मैं इस वीडियो के लिंक में एक चार्ट भी दे दूंगा पीडीएफ में सो दैट यू कैन रीड इट। अभी आप देख सकते हैं हर वॉवेल और कॉन्सोनेंट साउंड्स में जो ऊपर वाली कॉलम में है उसमें आपको कॉन्सोनेंट साउंड दिया हुआ है, और जो रो है सबसे लेफ्ट साइड की उसमें वॉवेल साउंड्स हैं। इनके कॉम्बिनेशन से एक नॉर्मल फिनिन का साउंड बनता है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशंस जो हैं वो सारे एक दूसरे से नहीं मिल सकते। देयर आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ साउंड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड दैट इज़ वाई दिस चार्ट इज़ वेरी नेसेसरी। तो आप जो है इन सारे चार्ट्स को, इस पूरे चार्ट को अच्छी तरह से रिपीट करते रहेंगे इन द सबसीक्वेंट वीडियो। जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसमें बस इस चार्ट के सारे साउंड्स को रिपीट किया जाएगा। ओके, सो फॉर द टाइम बिंग यू अंडरस्टैंड दैट देर विल बी अ चार्ट जिसमें सारे साउंड्स इंक्लूडेड होंगे, विच इंक्लूड्स एनी साउंड इन द चाइनीज लैंग्वेज। ओके, कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, थाउजेंड्स में हैं। ठीक है, लेकिन साउंड जो है वो इतने ही हैं। दीज साउंड्स कंबाइंड विद द टोन्स विल मेक डिफरेंट वर्ड्स और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके, now we'll come to tones. नॉर्मल मैंडरिन जो चाइनीज़ है, जो प्रिंसिपल डायलेक्ट है जिसको हम अभी सीखना चाह रहे हैं, इस डायलेक्ट में टोटल 4 टोन्स होते हैं। ओके, पहला टोन जो कि एकदम फ्लैट होता है, आप इस चार्ट से समझ सकते हैं। द फर्स्ट टोन इज फ्लैट। ठीक है, तो जो फ्लैट टोन है वो साउंड कुछ घंटी की जो ध्वनि होती है, टन, ऐसी ऐसी आवाज़ के साथ आता है। ठीक है, सो फॉर प्रैक्टिस इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर साउंड, लेट अस टेक अ साउंड माँ। ठीक है, तो माँ के साउंड को अलग अलग टोन्स में बोल के प्रैक्टिस करेंगे। ओके, इन द फर्स्ट टोन जो फ्लैट है, माँ का साउंड ऐसा आएगा, माँ माँ। ओके, जैसे घंटी की आवाज़ आती है, टन। ठीक है, सो इन द इनिशियल स्टेजेस ऐसे हमेशा हम बात नहीं करते हैं, बट आई रिक्वेस्ट कि आप इनिशियल स्टेजेस में ये साउंड को जो है स्ट्रेच करके ही टोन्स के साथ बोलें, सो दैट आपके इनिशियल स्टेजेस में आपको टोन का अंडरस्टैंडिंग हो जाए, एंड फाइनली व्हेन यू एक्चुअली आर कन्वर्सिंग यू कैन अंडरस्टैंड। जब आप एक्चुअली बोल रहे होंगे तब आपको समझ आएगा कि ये टोन्स जो हैं वो धीरे धीरे आपके भाषा में, आपके कन्वर्सेशन में एम्बेडेड हो गए हैं, उसमें समाहित हो गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टोन इज टन। ओके, माँ जब हम बोलेंगे हो जाएगा माँ। ठीक है, देयर इज सेकंड टोन जब हम ऊपर की तरफ जा रहे होंगे। यू कैन सी इस चार्ट में भी सेकंड टोन जो है थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो जब हम सेकंड टोन में माँ बोलेंगे ये होगा माँ। ठीक है, आपको साउंड लग रहा होगा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, थर्ड टोन जो है पहले नीचे जाएगा एंड देन इट विल बी गोइंग अप। ओके, सो माँ विल बी लाइक माँ। ओके, सो थर्ड टोन जो है नीचे से पहले नीचे की ओर जाएगा एंड देन इट विल गो अप। ओके, एंड देन देयर इज फोर्थ टोन, वो सीधा नीचे की तरफ आएगा। ओके, तो माँ जो फोर्थ टोन में होगा वो होगा माँ। ठीक है, ऊपर से नीचे, एंड यू कैन अंडरस्टैंड बाय द स्टीपनेस ऑफ दीज लाइंस कि आपको किस तरह से अपना जो लैंग्वेज है उसको चेंज करना है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे, माँ इन ऑल टोन। ओके, सो द फर्स्ट टोन इज माँ, सेकेंड टोन माँ। ठीक है, थर्ड टोन माँ, फोर्थ टोन माँ। ओके, तो ये वीडियो जो है मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप रिपीट करें इस वीडियो के साथ साथ।
ठीक है। सब्सीक्वेंट 2 वीडियोस और आएंगे जो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होंगे टूवर्ड्स द प्रोनाउंसिएशन थिंग, एंड चाइनीज़ लैंग्वेज का हार्ट समझ सकते हैं आप प्रोनाउंसिएशन को। सो आई एक्सपेक्ट कि आप जो है इसको स्किप नहीं करेंगे एंड यू विल डिलीजेंटली विल बी फॉलोइंग द शेड्यूल विच इज़ बीइंग गिवन इन दीज वीडियोज़। ये 3 वीडियोज़ जो हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे टोन मार्क्स के बारे में लिखा हुआ है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको फिनिन के साथ मिलेंगे, बट इन द इनिशियल स्टेजेस इट इज़ फाइन कि आप फिनिन के साथ है, ये टोन मार्क्स भी लिखें सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो फर्स्ट टोन जो है वो फ्लैट है, तो वो उस पर्टिकुलर फिनिन के ऊपर जो है MA जब लिखेंगे आप माँ को तो उसके ऊपर एक फ्लैट डाल देंगे सो दैट यू अंडरस्टैंड कि आपने किस टोन में लिखा हुआ है उसको, ठीक है। सेकेंड टोन माँ, थर्ड टोन माँ एंड फोर्थ टोन माँ, ठीक है। तो ये सारे साइंस जो हैं ये एक्चुअली शो करते हैं कि वो टोन्स कौन सा है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज 4 टोन देर इज़ अ न्यूट्रल टोन ऑल्सो, जहाँ पे साउंड जो है वो एकदम लाइट हो जाएगा, ठीक है, कोई टोन नहीं होगा माँ, ठीक है, देर विल नॉट बी एनी टोन, ठीक है। तो कहीं कहीं पे ये न्यूट्रल टोन भी आपको एनकाउंटर होगा, ठीक है। फिलहाल जो है आप ये चारों टोन्स को मेरे वीडियो में जब जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप भी रिपीट करते जाएं, ठीक है। देन सब्सिक्वेंटली विल एंड अप हैविंग अ गुड प्रोनाउंसिएशन एज अ बेस फॉर लर्निंग चाइनीज़। तो ये 3 वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, सो डिलीजेंटली फॉलो करें इसको, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट एंडीवर।